when you are working as a leader in a team, so you need to listen to other members. And if you're working as a team member in a team, even then you need to follow all the instructions given by your leader. So both ways, it is very important that you have to listen all the time. And we completed that topic last time. I showed you a video of Julian Treyer regarding how to use your voice effectively so that other people might listen to you. And now the next topic we're starting, that is oral communication. So oral communication, if you look at the picture, is like how to present your ideas in public, right? How to present your ideas at a forum, whether it is a lecture, a seminar, a conference, or it might be other way. But here we discuss many things, how you can speak good, that people try to listen to you effectively, right? So look at the next slide. Oral communication, in fact, is a thing that involves expressing and sharing ideas and information as well as influencing others through verbal symbols, that is non-written. So verbal symbols, what are verbal symbols? They are your gestures, your voice, all the things that you learned in that video I showed you last time by Julian Treyer. That was a TED talk. So they are all verbal symbols. They are non-written. They are not written. Right, Ji? So with these tools of your voice, that might be tone, that might be timbre, that might be your accent, that might be your pronunciation, that might be your body contact, that might be your eye contact, your body style, your standing style, the way you shake your hands, the way you move your hands, and this is how all the things, they try to make you a successful speaker. And if you're able to influence others, if you're able to affect others, if you're able to move others, that shows that you have shared your ideas and information accordingly, right जी? So अगर आप अपने ideas और information को non verbal communication के जरिए या verbal symbols के जरिए, जो कि हमारी non written है, written नहीं है, बोल के, ठीक है जी, जिसके अंदर हमारा verbal और non verbal दोनों आ जाएंगे. आपकी body movement भी आ जाएगी, आपकी आई कांटेक्ट भी आ जाएंगे, आपके हैंड मूवमेंट भी आ जाएंगे. इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप, जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, ठीक है जी, एक तो आपके लफ्ज़ भी, और सेकेंडली आपकी जो जेस्चर्स हैं वो भी. इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्पीच के ज़रिए लोगों को मुतासिर कर सकते हैं. So oral communication is a process where information is transferred from a sender to a receiver, usually by a verbal means, which can be supported by visual aid. अब what do you mean by visual aid? ऐसी support, ऐसी चीज़ जो आप देख भी सकते हैं, ठीक है जी. अब आपको जैसे you can hear me and you can look at the slides. ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ कि आपके पास मेरे लिखे हुए लफ्ज़ भी आ रहे हैं और मेरी आवाज़ से भी आप जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं. और उसके साथ हम डिफरेंट पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और अदर मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज विजुअल एड, जिसको आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी. सो रिसीवर कुड बी एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और इवन ऑडियंस. तो आपके ओरल कम्युनिकेशन में ये आपका एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ऑडियंस भी हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. इंडिविजुअल इज अ वन पर्सन ग्रुप, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 पीपल. और जब इन डिफरेंट ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑडियंस, ठीक है जी. तो जैसे आपको मैंने कह दिया, इट माइट बी अ लेक्चर, इट माइट बी अ पर्सनल टॉक, इट माइट बी अ लेक्चर, इट माइट बी सेमिनार, इट माइट बी कॉन्फ्रेंस, इट माइट बी अ प्रोसेशन, ठीक है. वो जुलूस के साथ जो खिताब करते हैं वो ऑडियंसेस होती हैं, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जिनके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, राइट जी. सो वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल भी हो सकते हैं. तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो जब ज्वाइन कर लेते हैं
लार्ज गैदरिंग में, तो उसको हम ऑडियंस या ऑडियंसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओरल कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। सो हम इसको इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एज लिसनिंग डज एट वर्क प्लेस। जिस तरह लिसनिंग की बहुत अहमियत है, तो हमारे ओरल कम्युनिकेशन की वर्क प्लेस पे या बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो इसके अलावा अगर हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी, जैसे लिसनिंग अगर हम देखते हैं तो उससे बहुत सारे हमारे सोशल और पर्सनल और फैमिली मैटर रिजॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ लिसनिंग अदर्स। हमें दूसरों को सुनने की आदत नहीं है, और अगर हम सुनते भी हैं तो हम हियर करके हम जजमेंट पास कर देते हैं, हम वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो उसमें जो हम एक अगर स्टेप भी स्किप करते हैं तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। इन द सेम वे हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इसकी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस है। Oral communication, it is a vital integral part of the modern business world. Vital का मतलब है important, integral का मतलब है necessary part of the modern business world. अगर हम आज के सिनेरियो में देखते हैं तो आप देखते हैं कि अब इस वक्त आपकी डिग्रीज, आपके वो जस्ट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो द पीसीज ऑफ पेपर। असल में आप जो बोलते हैं, आप जो प्रेजेंट करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। अब उसमें आपकी जो स्पीकिंग पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा जज किया जाता है एज कम्पेयर टू योर डिग्रीज एंड अदर थिंग्स। ठीक है जी, जितनी मर्जी आपके पास डिस्टिंक्शन है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप टॉपर हैं, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक और यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज टू अदर्स, सो दैट इज ऑफ नो यूज। आपकी डिस्टिंक्शन किसी काम की नहीं है अगर आप अपने आइडियाज को किसी को प्रॉपरली ट्रांसमिट या शेयर नहीं कर पा रहे। और आज आपने देखा होगा कि whether you go for an interview, whether it is market, whether it is uh, educational institute और a software house, तो वो आपसे आजकल डेमो लेते हैं, डेमो प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रेजेंटेशन के जरिए बहुत सारी चीज़ें वो जज कर देते हैं, आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी इन्फ्लुएंसिंग, ये आपका आर्ट ऑफ परसुएशन, उसके साथ आपकी पर्सनालिटी और बाकी दूसरी चीज़ें जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन में ज़रूरी है। तो अब आज की मॉडर्न वर्ल्ड में आपके लिए ओरल कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। पीपल इन वर्क प्लेस स्पेंड ओवर 75% ऑफ देयर टाइम इन कम्युनिकेटिंग, बिकॉज हम 75% से ज़्यादा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में गुजारते हैं, और उसके बाद कम्युनिकेशन में हम डिफरेंट डिसीजंस करते हैं, हम प्लान करते हैं, और हम मीटिंग्स करते हैं, हम दूसरों को चीज़ें कन्वे करते हैं, या अगर मार्केट में है, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को परसुएड करने की, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल डन with the medium of oral communication, right ji? So oral communication at organization level includes staff meeting, आपस में staff में आपकी मीटिंग होती है जिसमें आप सबॉर्डिनेट भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, पर्सनल डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, टेलीफोन डिस्कोर्स है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस है। तो अब इसके डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट चैनल, लेकिन वो सारी सारी दे आर डन इन द वे ऑफ oral communication. So outside the organization, it takes the form of face-to-face meetings, telephone calls, speeches, telephone conference, audio or video conferences. तो अब ये अगर हम देखते हैं कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, इसलिए इसके ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम ये कर रहे होंगे तो इससे पहले मैंने आपको करवाया था, इससे पहले क्या ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ लिस्टिंग। लिस्टिंग भी उतनी ज़रूरी है, और क्योंकि जब आपके साथ कोई बात कर रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना कि मैंने अब इसको रिप्लाई बैक करना है। और प्रॉपरली रिप्लाई बैक आप कैसे कर सकते हैं, आफ्टर हैविंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ व्हाट द स्पीकर इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल जो हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन के, अगर हम देखते हैं कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमें फॉलो करने चाहिए, वो हैं जी आस्किंग क्वेश्चंस, लिसनिंग स्किल्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक दैट हैज इम्पैक्ट, रिसीविंग फीडबैक विद ग्रेस एंड डिग्निटी। सो इसमें हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्यों पूछते हैं जी हम, आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में पूछा कि अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप पूछ लें। और क्वेश्चन आंसर का मैंने आपको बताया था कि विदाउट इंटरप्शन
आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको मेरे समझना है, ठीक है जी। तो आप विदाउट इंटरप्शन ये कर लें कि यू कैन हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड्स, पेपर और पेन अपने हाथ में रखें, कोई क्वेश्चन आता है तो उसको नोट डाउन करें, और उसके बाद मैं आपसे जब पूछती हूँ तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन जो हैं उनको कवर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बार बार मेरे से स्टॉप करके पूछें, तो दैट कैन टेक ए लॉट ऑफ टाइम और उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा हो, ठीक है। तो पॉइंट से भी मैं फिर वो डिविएट हो जाऊँ। अब इसमें आस्किंग क्वेश्चन है, उसके भी कुछ हमारे पास ज़ाब्ते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन ही पूछ लेते हो, और बेहतर ये होता है कि हम उसको नोट डाउन करते जाएं, और वो आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों का भी वो क्वेश्चन एक क्वेरी हो सकती है। और सम टाइम ये होता है कि हम थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन को पहले पूछने की कोशिश करते हैं, और लेटर हमारे वो जो आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है उसमें वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है और उसका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। सो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक होके हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, ना कि ये कि इमोशनल होके हम पूछें। एंड देन लिसनिंग स्किल ऑलरेडी डन, कि हमें अपने लिसनिंग स्किल जो है वो शार्प करने चाहिए, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक दैट हैज इम्पैक्ट, कि हमें फीडबैक को किस तरह से रिसीव करना है और किस तरह से हमें फीडबैक किस तरह से दूसरों को देना है, ठीक है जी। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि फीडबैक ऐसा दें जिसका कोई इम्पैक्ट, जब आपको फीडबैक कोई दे रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो रिसीविंग फीडबैक विद ग्रेस एंड डिग्निटी, तो उसमें वो कोई क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो डजंट मीन यू गेट हाइपर एंड यू ट्राई टू काउंटर अटैक, तो उसको डिग्निटी और ग्रेस के साथ सुन लें, बिकॉज फीडबैक जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है दैट इज फॉर द बेटरमेंट, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है, ना कि आपको पॉइंट आउट करने के लिए। उसमें हम देखते हैं आस्किंग क्वेश्चन, अब वन बाय वन सारे हम देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज आस्किंग क्वेश्चन। सो गुड क्वालिटी क्वेश्चन लीड टू गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, आपके अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो समटाइम हम वेरीफाई करने के लिए करते हैं कि हमें चीज़ों की समझ आ गई है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम वाकई उसमें ऐड करने के लिए करते हैं, ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन जो सिर्फ हम वेरिफिकेशन के लिए करते हैं वो होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है। और वो हमेशा स्टार्ट करते हैं सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इज, एम, आर, वाज, व्हाट, डिड, डू, डज वगैरह, ठीक है। और ये सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं जी, आर वी रियली डूइंग दिस, इज इट रियली इम्पोर्टेंट, तो आप कहते हो यस। और इनका आमतौर पे ये जो इनको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं, क्लोज क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन भी कहते हैं, और इनका आंसर जो है मोस्टली यस नो होता है, ठीक है जी। और जो आपके ओपन क्वेश्चन होते हैं, टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें यू नीड सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप कुछ ऐड करना चाह रहे होते हो, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिसको आप WH वर्ड्स भी बोलते हो, लेकिन इसमें हाउ भी आ जाता है, तो मैं इसको कॉल करती हूँ आमतौर पे क्वेश्चन वर्ड्स। तो जितने क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, उसमें एक वर्ड से ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें एक सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डू यू लाइक टी, आप क्या कहेंगे, यस या नो, ठीक है जी। तो मैं कहूंगी व्हाई डू यू लाइक टी, तो वो दैट नीड्स वन सेंटेंस, और दैट नीड्स मोर देन दैट नीड्स एक्सप्लेनेशन, राइट जी। अब इसमें डू यू लाइक टी और डू यू अंडरस्टैंड, और इसमें व्हाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड। अब यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो वहाँ वो आप मुझे रोक के बताते हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है और इसमें ये पॉइंट इज नॉट क्लियर, ठीक है जी। तो अब जब आपने क्वेश्चन करना है तो उसमें देख लीजिए, यू नीड वेरिफिकेशन, आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं या आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। समटाइम पूछना आपने क्लोज एंडेड होता है, पूछ लेते हो आप ओपन एंडेड, या फिर आपने ओपन एंडेड पूछना होता है, आपको डिटेल चाहिए होती है, लेकिन आप क्लोज एंडेड करके, और वो आपका जो लिसनर है, प्रेजेंटर है, वो समझता है कि आपने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, वो यस नो करके आपको खामोश करवा देता है।
तो क्वेश्चन इज समथिंग रॉन्ग विद योर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन कौन से वाला पूछा, उसमें आपने क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर सोच समझ के पूछना है कि मुझे ओपन एंडेड चाहिए या मुझे क्लोज एंडेड चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ तक देख लीजिए, अगर कोई इशू है यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल। वी डिड इन डिटेल, सारे लिस्टिंग स्किल हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। सो एक्टिव लिस्टिंग इज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें लिसनर होना चाहिए, बल्कि एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ठीक है जी। एक्टिव लिसनर हम कैसे बन सकते हैं? एक्टिव लिस्टिंग इज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू हियर नॉट ओनली द वर्ड्स दैट अनदर पर्सन इज सेइंग बट टू अंडरस्टैंड द टोटल मैसेज बीइंग सेंट, ठीक है, कि इसमें हम पूरे के पूरे मैसेज को समझ लें, इस तरह समझते हैं कि हम उसको नेक्स्ट पर्सन को कम्युनिकेट भी कर सकते और उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस भी ना आए। सो दैट इज एक्टिव लिस्निंग। एक्टिव लिस्निंग इज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस मीन नोइंगली, जानते हुए हम एफर्ट करें, टू हियर करें, साउंड वेव्स को स्ट्राइक करने दें अपने गानों के साथ, और फिर अपने माइंड में प्रोसेस होने दें, नॉट ओनली द वर्ड्स that other person is saying but to understand the total message being sent, कि हम सिर्फ वर्ड्स पे ना जाए, उसके मीनिंग पे जाए, मैसेज पे जाए। और इसको एक्टिव लिस्टिंग को हम कैसे कर सकते हैं? सो लुक इंटरेस्टेड, हम अपने आप अपना शो करें। अपना इंटरेस्ट हम कैसे शो कर सकते हैं? बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन, बाय नोडिंग योर हेड, अपने हेड को आप शेक करके, यस और नो करके, ठीक है जी। और इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, राइट जी। एंड देन इंक्वायर विद क्वेश्चन, क्वेश्चन से आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहें। अब स्टे फोकस्ड, वो आपने जो बैरियर्स किए थे, ठीक है जी, इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स हमने किए थे, तो बैरियर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। रेजिस्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट व्हेन यू आर अवेयर कि नहीं यहाँ मैं कुछ सीखने आया हूँ, और सबसे अच्छा स्टे फोकस का सबसे अच्छा टिप क्या है? द बेस्ट टिप कि you start writing whatever you are trying to listen to। स्टे फोकस के लिए कि आप अगर चाहते हैं कि डेविएट ना हो या आपके माइंड में कुछ और थॉट्स ना आए, तो आप जो सुन रहे हैं उसको नोट डाउन करना शुरू कर दें, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। 99% जो है आप उसी टॉपिक पे रहें। जब आप उन चीज़ों को नोट डाउन करने की कोशिश करें इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन पॉइंट्स, इन योर ओन नोट्स, सो स्टे फोकस्ड, ठीक है जी। क्योंकि अब इसमें नंबर 3 पॉइंट में, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग व्हाट यू आर लिसनिंग टू, जिस चीज़ को आप सुन रहे होते हैं उसी को जब आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो साइकोलॉजिकली, ये साइकोलॉजिकल एक रिसर्च भी कंडक्ट हुई है, तो उसमें जो 70% चीज़ें हैं वो आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। वो 70% चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, जो चीज़ भी आप सुन के लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि वो एक मैकेनिक है, वो एक आपका वो एक्शन हो रहा होता है, तो साथ साथ आपके नर्व्स जो हैं वो आपके माइंड में प्रिंट कर देते हैं। और जिन चीज़ों को हम सिर्फ सुनते हैं, लिखते नहीं हैं, वो हम जल्दी भूल जाते हैं, और जिनको हम लिख लेते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप टेस्ट करें, ठीक है। कैसे टेस्ट करेंगे? अगेन क्वेश्चन से, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन, या यू कैन ऐड समथिंग इनटू द कन्वर्सेशन, उसमें आप थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐड कर दें, तो जो आपके माइंड में, आपके ऑब्जर्वेशन, ये आपके नॉलेज में है, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इवेल्युएट द मैसेज, मैसेज को इवेल्युएट करें, जो भी आप सुन रहे हैं उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ, अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको इवेल्युएट करें, जज करें कि आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं या उसकी एक नई डायमेंशन ऐड हो रही है। एंड यूटिलाइज योर फीलिंग बिकॉज यू आर एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, तो आपको अपनी फीलिंग को न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज का मतलब ये नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एक साइड पे नहीं होना, ना तो उनके साथ आपने एग्री करना है या डिसएग्री नहीं करना, टिल द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है। हम ये करते हैं कि हम फौरी तौर पे झुकाव में आ जाते हैं। जब हम झुकाव में आते हैं तो हमारा माइंड हमें उसी तरफ ले जाना शुरू कर देता है जिधर हम जा रहे होते हैं, वेदर वी एग्री और वी डू नॉट एग्री। अब एक सिख है या एक कोई यहूदी स्कॉलर है, ज्यू है,
वो जो आके अगर आपसे बात करना शुरू कर देगा तो हम पहले से प्रेजुडिस्ड होंगे, हम उसकी बात को नहीं सुनना चाहेंगे, बिकॉज वी डू नॉट लाइक दैट। तो हम फौरन कहेंगे कि इसने ना हमें कुछ एंटी रिलीजन चीजें कुछ इस तरह से हमें समझाने की कोशिश करनी है। लेकिन हमें उस वक्त अपनी फीलिंग को न्यूट्रलाइज करना है, और जब तक कि हम उसको सुन ना लें, हो सकता है कि वो इस तरह की कोई बात ही ना हो, लेकिन हम फौरी तौर पे जो है वो हम जज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि कोई पर्सन स्पीक करे, वो अपना मैसेज कन्वे कर देता है हमें, अपने एंटर होने के स्टाइल से, अपने स्टैंडिंग स्टाइल से, या उसका जो ड्रेस है, या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको उसके बोलने से पहले बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर देती है। और उन्हीं की बेस के ऊपर हम उसकी पर्सनालिटी या उसकी होने वाली कन्वर्सेशन को एनालाइज करते हैं। समटाइम इट इज अकॉर्डिंग, और समटाइम इट इज अगेंस्ट वट एवर यू थिंक अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, सो यू नीड टू यूटिलाइज योर फीलिंग। क्लियर है जी? सो अब इसमें एक छोटा सा वो एक में क्लिप, वो एक पिक्चर मैंने ऐड की हुई है। आई मे नॉट हैव द आंसर, तो आई मे नॉट हैव द आंसर बट आई विल फाइंड इट, आई मे नॉट हैव द टाइम बट आई विल मेक इट। ठीक है जी? तो हो सकता है कि आपके पास उन बातों का जवाब ना हो, लेकिन जब आप चीजें सुन लेते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीजें जो है वो उनका आंसर आपको मिल जाता है। और टाइम जो है वो आपको टाइम टू टाइम चीजें हम सुनते रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करती चली जाती हैं, या आपके कॉन्सेप्ट के अंदर चीजें ऐड करती चली जाती हैं, और उसमें डिफरेंट डायमेंशन हमारे आते चले जाते हैं। ठीक है जी? सो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग फीडबैक दैट हैज इम्पैक्ट। और ऐसा फीडबैक हम दें जिसका कोई इम्पैक्ट हो, इसका मतलब ये है कि वो फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव। फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ठीक है जी, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, पॉइंट आउट करने के लिए नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट टू ह्यूमिलिएट अदर्स ऑफ कोर्स, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होना चाहिए, और ना ही दूसरों को ह्यूमिलिएट करने के लिए होना चाहिए कि हम उनको शर्मिंदा करने की कोशिश करें। जैसे ये रिसेंट एक अभी आपने सुना है, ये फेसबुक पे या आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, वो मौलाना तारिक जमील वाला। ठीक है, तो उसमें फीडबैक उन्होंने दिया, उन्होंने जनरल कॉन्टेक्स्ट में, मैंने आज सुना नहीं वैसे दोनों बातें, लेकिन मैंने आई केम अक्रॉस ऑल द थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि वो जनरल एक बात की थी, कुछ ने उसको पर्सनल ले लिया। जब पर्सनल लेंगे तो फिर इस तरह के वाकयात होंगे जैसे आज कल आप देख रहे हैं, उसमें ग्रजेस आ जाएंगे। उसमें जब ग्रज आएगा तो फिर वो बड़े लार्ज स्केल पे चला जाएगा, और उस पे जो हमारी लर्निंग है, हमारा जो नॉलेज है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे सैबोटाज हो जाते हैं, ये ऑल गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी? और उनको दूसरा बंदा इजीली जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेता है। सो फोकस ऑन पर्सनस बिहेवियर नॉट द पर्सनालिटी। अब उसकी पर्सनालिटी क्या है उस पर छोड़ दें। इफ द बिहेवियर इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे यू समथिंग। ठीक है, और इसमें आपने पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होना फीडबैक में, पर्सनल फीडबैक नहीं होना, बल्कि जो कंटेंट, जो चीजें आपने सुनी है, जो चीजें आपसे शेयर की गई हैं, उसके ऊपर आप उसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसमें यू कैन आस्क certain question, you can add some sort of your own ideas, उसमें आप जजमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीडबैक शुड फोकस ऑन इशू नॉट द पर्सन। ये पर्सन पे नहीं होना चाहिए, जो भी इशू है उसके ऊपर आप फोकस करें, ना कि उस पर्सन को आप क्रिटिसाइज करना शुरू करें कि आप खड़े कैसे हैं, आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपकी शक्ल कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद द लर्निंग। स्कॉलर जो होते हैं, आपको पता है कि वो किसी भी हुलिये में हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। तो अब आपका फीडबैक जो है वो आपने जो क्वेश्चन करने हैं, तो अब फीडबैक इनफैक्ट क्या है, पहले फीडबैक को देख ले। फीडबैक इनफैक्ट हमारा रिएक्शन है। ठीक है जी, फीडबैक है हमारा रिएक्शन टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी चीजों की तरफ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो फीडबैक होता है। अब फीडबैक आपका नॉन वर्बल भी हो सकता है, जब आप नाक मुंह चढ़ाते हो, जिसमें यू डू नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है जी, और वो आपका वर्बल भी हो सकता है, वर्बल रिटन भी हो सकता है, तो वो आपका ओरल भी हो सकता है। तो फीडबैक आपका डिफरेंट चीजों की तरफ, डिफरेंट पर्सन्स की तरफ, डिफरेंट आइडियाज की तरफ आपका रिएक्शन है। अब रिएक्शन जो है, इट शुड फोकस ऑन इश्यूज नॉट द पर्सन, एंड इफ पॉसिबल गिव फीडबैक इन प्राइवेट। अगर आप समझते हैं कि फीडबैक जो है वो मेरा इनॉय कर सकता है, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि वो फीडबैक पर्सनल दें, वो आप प्राइवेट दे दें।
ताकि वो उस पर्सन को ये ना लगे कि मुझे पब्लिकली यू ट्राइंग टू हार्म मी और यू ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी। वो हो सकता है कि वो उसका थोड़ा सा विजन नैरो हो और वो चीज़ों को समझे ना, तो बेहतर ये है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कि आप फीडबैक जो है वो प्राइवेट में दें। अगर वो समझते हैं कि वो थोड़ा सा उस पर्सन के लिए पर्सनल है या डिस्टर्ब कर सकता है या फिर नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है तो आप पब्लिकली भी दे सकते हैं। फीडबैक इज यूजफुल व्हेन वेल टाइम्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका फीडबैक जो है वो वेल टाइम्ड होना चाहिए, यानी आपका टाइमली होना चाहिए। फीडबैक आप एक दिन के बाद दे रहे हैं या आप 10 दिन के बाद दे रहे हैं या आप एक हफ्ते के बाद दे रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उस वक्त बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो फीडबैक जो है वो ऑन द स्पॉट जरूरी है। और वेल टाइम, जितना भी टाइम है, जितना भी टाइम आपको दिया गया कि इसके दौरान आप क्वेश्चन कर सकते हैं या आप अपना फीडबैक सबमिट करवा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेल टाइम्ड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। अदरवाइज टाइम बार फीडबैक जो है वो फ्यूटाइल है, बेकार है। डिस्क्राइब, डू नॉट इवेल्युएट। चीजों को हम डिस्क्राइब करें, जिक्र करें, हम उनको इवेल्युएट या जज ना करें, क्योंकि जब हम जजमेंट में आ जाते हैं तो दैट मैटर्स अ लॉट एंड दैट क्रिएट्स ट्रबल्स। सो बी स्पेसिफिक, नॉट जनरल। जिस चीज की, जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई उसके बारे में आप फीडबैक दें। जनरल आप जजमेंट, जनरल जब होगा तो वो फिर आप जजमेंट पास करेंगे, तो जजमेंट पास ना करें, बल्कि स्पेसिफिक होकर फीडबैक दें कि जहाँ जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप पूछ लें, नंबर वन, और या उसमें दूसरे पर्सन को करेक्ट कर दें। समटाइम ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बिकॉज टू एर इज ह्यूमन, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी कैन मेक मिस्टेक्स। तो उसमें बेहतर ये है कि अगर कोई इस तरह का है तो वो पर्सन में दे दें ताकि वो ह्यूमिलेशन ना हो। लेकिन अगर वो पर्सन जो है वो नैरो विजन का नहीं है, ब्रॉड माइंडेड है, तो फिर वो द पर्सन शुड नॉट माइंड अगर आप वो उसको प्राइवेट नहीं भी देते, पब्लिकली भी देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका फीडबैक था जिसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और उसके बाद रिसीविंग फीडबैक विद ग्रेस एंड डिग्निटी। अब वो दूसरा पर्सन जो है वो किस तरह से फीडबैक को रिसीव कर रहा है उसको हम देखते हैं। डिस्कस द फीडबैक विद दोज हुज ओपिनियंस यू रिस्पेक्ट। अब एक लीडर है या एक टीचर है या एक कम्युनिकेटर है, तो सारे के सारे बंदों को साथ लेके चलना या सारे के सारे लोगों के माइंडसेट को चेंज कर देना, ह्यूमनली दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ हिस्से को आप मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन टोटली अगर आप कहें कि मैं सबको एक ही दफा मूव कर लूंगी या कर लूंगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उनका फीडबैक आपके लिए मैटर करता है, उनके क्वेश्चन या उनका क्रिटिसिज्म आपके लिए मैटर करता है, जिनकी ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि सबकी। ठीक है जी। सो बी अटेंटिव टू द पर्सन गिविंग फीडबैक। और जब आपको कोई पर्सन फीडबैक दे रहा है तो आप उसकी तरफ अटेंटिव हो जाएं, बिकॉज वो दैट इज फॉर योर बेटरमेंट, वो आपके वेलफेयर के लिए। टेक इट एज अ सिंसियर गिफ्ट दैट विल हेल्प यू ग्रो। उसको एक सिंसियर गिफ्ट के तौर पे लें कि जो आपकी बेहतरी के लिए है। टेक नोट्स, रिकॉर्ड द वर्ड्स द गिवर यूज्ड। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि डेविएट ना हो। नोट्स आप जरूर अपने साथ रखें या ले लें, और उस नोट्स के हवाले से फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे ये चीज समझ नहीं आई, एज फॉर एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द पॉइंट। और यू कैन हैव सर्टन एग्जाम्पल्स, उस पर आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए as many examples as you can quote, and then avoid being defensive। और अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो उसमें आपने डिफेंसिव नहीं होना। डिफेंसिव का मतलब ये है कि आपने अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश नहीं करनी। पहले क्वेश्चन को सुन लें, समझ लें, और उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ उसको सपोर्ट करते हैं अपने आंसर को। और स्टे काम, बी पेशेंट। ठीक है, और उसमें आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना कि आप जो है वो फौरी तौर पे हाइपर हो जाएं, और पर्सनल नहीं होना फीडबैक लेते वक्त भी और फीडबैक देते हो।